Hello students, I am Rajashree ma'am and you are watching English Guidance for School Children. I am going to explain a short story by Guy de Maupassant from the book James English Reader Class 6. The name of the story is The Diamond Necklace. This is a beautiful story and also very famous, and I am going to explain it both in English and in Hindi because most of the students cannot follow the English to English explanation totally, and it is better to explain it in Hindi than to be ignorant about the actual meaning of the lesson. So let's start with the story. हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टोरी को समझाना. Matilda is the charming wife of a clerk who dreams of a life of leisure and luxury. Matilda बहुत सुंदर एक औरत है जो कि एक क्लार्क की बीवी है, वाइफ है. तो वो she was a beautiful lady. This is about a beautiful lady called Matilda, and she was married to a normal clerk, was not very rich person, very middle class person. And Matilda was beautiful lady, and she thought that she was she was not well married. She deserved much more richer person. मतलब ये माटिल्डा एक बहुत सुंदर औरत है और वो सोचती थी कि, और वो एक क्लार्क से उसकी शादी हुई थी और वो सोचती थी कि वो आदमी जो है वो उसके बराबर के नहीं है और उनको और रिच पर्सन से उनको शादी होना चाहिए था उसका. When she is invited to a grand ball, however, she feels miserable for she does not have a gown for the occasion. तो वो उनको एक बार ग्रैंड बॉल मीन्स एक तरह का पार्टी जिसमें बॉल डांस किया जाता है सुंदर कपड़ा पहन के. तो वो उसको जब ओकेशन में बुलाया गया था उन लोगों को, उसके और उसके हस्बैंड को, तो लेकिन वो सोचती गई कि उसके पास उतना अच्छा कपड़ा नहीं है, ड्रेस नहीं है एक तो उतना अच्छा पार्टी में जाने के लिए. शी मैनेजेस टू बाय अ न्यू ड्रेस एंड बोरोज ज्वेलरी फ्रॉम हर फ्रेंड. उसने एक तो अच्छा सा ड्रेस तो खरीद लिया लेकिन उसके साथ ज्वेलरी उसके पास नहीं था उसके मुताबिक, इसीलिए वो उसको अपने फ्रेंड से बोरो कर ली, उधार में ले ली. However, fate seems to have other plans in store for her. लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा हुआ था. तो यही इसी के बारे में ही ये कहानी है पूरा. तो आज मैं इसका आधा पार्ट समझाऊंगी और सेकंड पार्ट में इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी. Matilda Loisel was one of those pretty charming young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. तो शुरू में ही बताया गया कि मटिल्डा लॉयजल बहुत सुंदर थी और लेकिन उसका डेस्टिनी, एरर ऑफ डेस्टिनी मतलब ये भाग्य का गलती था कि वो एक साधारण से घर में एक क्लार्क के साथ उसका शादी हुआ था. शी हैड नो मनी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग known and getting married to a rich man, but she herself was from a poor family. That is why she could not marry a richer person. मतलब वो खुद भी तो एक माने पुअर घर से थी, इसीलिए उसके पास एक अमीर आदमी से शादी होने का कोई उम्मीद नहीं थी. She allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन का एक क्लार्क से उसकी शादी हुई थी. She suffered for she felt she was born for all the fine, beautiful things of life. She suffered, that means she felt pain. उसको ये बुरा लगता था कि वो जब सोचती थी कि वो इतनी सुंदर है, उसका सब चीज़ अच्छा मिलना चाहिए था लेकिन वो नहीं मिला. She suffered from the
poverty of her apartment, the shabby walls, the worn chair, and the faded hangings. They were all very poor things, poor and shabby things in her apartment. It was not, her apartment was not also beautiful. It looked poor, worn out. उसका जो अपार्टमेंट था वो भी बहुत ही एकदम फटा पूरा था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था. शैबी वॉल्स मतलब दीवार जो था वो एकदम घिसा हुआ, गंदा. चेयर भी जो था एकदम वो भी टूटा फूटा. फेडेड हैंगिंग्स जो सजाने का आइटम्स था वो भी एकदम पुराना पुराना था. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, whom she did not like to visit because it hurt so much when she returned to her own poor apartment. Whenever she used to meet her rich friend, she felt very poor because she felt bad because she when she would come back to her own house, then it looked much more poorer, much more shabbier. मतलब वो उसके साथ एक फ्रेंड थी जिसके साथ वो मिलना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका वो फ्रेंड जो थी वो बहुत रिच थी और वो उसके घर से जब वो अपने घर में आती थी तब वो अपना घर और भी बुरा लगता था, और भी पुराना फटा पूरा लगता था. One evening her husband returned looking excited. In his hand was a large envelope. एक दिन उसके हस्बैंड वापस जब आए, when he looked excited, उनको बहुत excited लग रहे थे वो. उनके हाथ में एक ठो लिफाफा था, envelope. And here is something for you, he said. She quickly drew out a printed card. और एक हाथ में लिफाफा था, वो दिखाकर उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे लिए कुछ है. और वो क्विकली ड्रू आउट मतलब खींच लिए उसके हाथ से. शी टुक द एनवेलप फ्रॉम हिज हैंड एंड फाउंड अ प्रिंटेड कार्ड. उसमें एक तो कार्ड था प्रिंट किया हुआ. उसमें लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज Ramponu request the honor of Monsieur and Madame Loisel's company. तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से उन लोगों को भेजा गया था, मैडम जॉर्ज रामपनुस, और उन लोगों को एक तो इन्विटेशन भेजा था. मॉसी एंड मैडम, हियर इट इज़ मॉसी नॉट मॉन्सियर, दिस इज मॉसिए. ये फ्रेंच में मिस्टर को मॉसिए कहा जाता है. एंड मैडम लॉइजल्स कंपनी, ये दोनों को बुलाया जा रहा है. मैडम मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंट. मिनिस्टर के अपने रेसिडेंट्स में जहाँ वो रहते हैं, किसी का निवास को रेसिडेंस कहा जाता है. तो रेसिडेंस में उन लोग को बुलाया गया है. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब उनके हस्बैंड को ये उम्मीद था कि वो खुश हो जाएगी. He thought that she would be delighted, she would be happy that minister had invited them. She would be honored. लेकिन वो उल्टा ही हुआ. वो उनके हस्बैंड सोचे थे कि वो बहुत खुश हो जाएगी, सोचेगी कि इतने बड़े लोग उन लोगों को बुलाया है, लेकिन हुआ उल्टा. शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल एंड मरमरिंग, दैट मीन्स बड़बड़ा कर अपने मन में बोली, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, व्हाट शुड आई डू विद दैट, क्या करें उसको लेकर. बट माई डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट, दिस इज़ अ ग्रैंड ओकेशन. तब ये समझाने लगे कि बट डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, दैट मीन्स मुझे लगा था कि इससे तुम खुश हो जाओगी क्योंकि तुम कहीं जा नहीं पाती हो और ये इतना बड़ा ओकेशन है, ग्रैंड ओकेशन, दैट मीन्स वेरी बिग ओकेशन. शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई एंड सेड, What do you suppose? I have to wear to such a formal party? तब वो बोलने लगी कि she looked at him
एंड इरिटेटेड विथ एन इरिटेटेड आई, दैट मीन्स वो एकदम तिलमिला गई एकदम। उनका आँखों में एकदम पूरा इरिटेशन दिखाई दे रहा था। शी फेल्ट वेरी बैड। वॉट डू यू, चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। वॉट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ फॉर्मल पार्टी, ऐसे फॉर्मल पार्टी में क्या पहनूंगी मैं, आपने ये सोचा। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट and stammered, and but the husband did not think about her dress before and stammered, मैंने गिड़गिड़ा के बोले, तुतला के, why the dress you wear when you go to the theater, it seems very pretty to me। तब वो बोलने लगे, समझाने लगे कि क्यों, तुम तो जो थिएटर में जो पहन के जाती हो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। You look very pretty in that dress। He felt silent, upset at the sight of his wife weeping। अब वो एकदम चुप हो गए, and upset, that means disappointed, when at the sight of his wife weeping, रोती हुई वाइफ को देखकर वो एकदम disappointed हो गए, upset हो गए। Let us see, Matilda, how much would a suitable dress cost? Something simple। तो वो फिर पूछने लगे कि मटिल्डा, एक तो ऐसा ड्रेस लेने में कैसा, कितना खर्चा आएगा। हाउ मच इज़ द प्राइस ऑफ सच अ ड्रेस। आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली बट 400 francs ought टू कवर इट, शी सेड। तो बोलने लगी कि मुझे तो ठीक से मालूम नहीं है, मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है 400 francs, फ्रांक्स इज़ द करेंसी और मनी ऑफ फ्रांस। तो ये ऑथर जो राइटर जो है, गी द मोपासा, इज़ फ्रॉम फ्रांस, वॉज फ्रॉम फ्रांस, एंड दैट इज़ वाई ही रोट फ्रैंक्स। तो वो बोले लगे कि 400 francs लगेगा शायद। वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 francs। तो उसके हस्बैंड बोले कि ठीक है, मैं तो दे दूँगा 400 francs। The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad and anxious। When the time of the ball was approaching, that means शुरू हो रहा, मैंने आने जा रहा था, जितना करीब आ रहा था, तो मैडम लॉयजल seemed sad and anxious। मैडम लॉयजल और भी दुखी और चिंतित दिखाई दे रही थी। Anxious means चिंतित, was in a deep thought। Her husband said to her, what is the matter with you? तब उनके हस्बैंड पूछने लगे, क्या बात है, what has happened to you? And she responded, I am upset because I don't have a jewel to adorn myself with। तब वो बोलने लगी, responded, that means replied, that I am upset, I am disappointed because I don't have the jewelry to adorn myself, to deck myself। adorn means to deck। तो वो बोलने लगी कि मैं अपसेट हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसा ज्वेलरी नहीं है जिससे मैं अपने आप को सजाऊँ। एडॉर्न करना मीन्स सजाना। तो देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड आस्क योर फ्रेंड मैडम फॉर्स्टियर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तो हस्बैंड बोलने लगे जोर से कि ही शाउटेड आउट, why we are so foolish that we could borrow jewelry from Madame Forestier। Forestier was the lady who was the friend of Madame Loisel। Madame Forestier जो थी वो रिच फ्रेंड थी मैडम लॉयजल की। तो अब हस्बैंड के दिमाग में ये आया, अरे हम लोग इतने बुद्धू हैं, हम लोग तो उनसे उसको बोरो कर सकते हैं। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress। और वो जाके अगला दिन वो गई उनके घर और जाके अपनी सारी बातें बताई, क्या क्या दिक्कत है, what is the problem। Madame Forestier took out a large jewelry case, opened it and said, choose my dear। तब मैडम फॉरेस्टियर अपना बड़ा सा ज्वेल केस को सामने रखी और बोली कि ओपन करो और देखो, चूज़ करो कौन सा तुमको चाहिए। विच वन डू यू लाइक, यू टेक इट फ्रॉम हियर। अमंग द ज्वेल्स शी सॉ
a superb necklace set with diamonds. She asked in a hesitating voice, "Could you lend me this?" तो वो बोलने लगी कि फिर उनको उसको एक तो बहुत सुंदर डायमंड का नेकलेस दिखाई दिया उसके उनके ज्वेलरी बॉक्स में, और पूछे हेजिटेटिंग वॉइस, दैट मीन्स करे या ना करे ये सोचकर उन्होंने पूछा कि क्या ये मैं ले सकती हूँ? वाई यस सर्टनली। तब उनके मैडम फॉरेस्टर बोले कि यस ज़रूर ले सकती हो, सर्टनली मीन्स ज़रूर ले सकती हो। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of gaiety. The ball party आ गया, arrived, and Madame Loisel was a great success. मैडम लॉयजल बहुत सक्सेसफुल रही वो पार्टी में. शी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल. सबसे सुंदर वो लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी, ग्रेसस लग रही थी, और बहुत स्माइल भी कर रही थी, और फुल ऑफ गेटी. गेटी मीन्स जॉय एंड चीयरफुलनेस, मैंने एकदम खुशी के साथ वो झूम रही थी एकदम जैसे कि. ऑल द मेन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड विश्ड टू वॉल्स विथ हर. और सब में आदमी उन लोग उसी की तरफ देख रहे थे, और सब कोई उनके साथ वॉल्स इज़ अ डांस स्टेप, वो वॉल्स करना चाह रहे थे. She danced with enthusiasm, thinking of nothing, floating on a cloud of happiness. और वो नाचने लगी with enthusiasm, बड़ी उत्साह के साथ, और कुछ भी सोच नहीं रही थी. एकदम लग रहा था जैसे कि वो cloud of happiness, एकदम खुशी के बादल में वो झूम रही है. She and her husband left the ball at around 4 o'clock. Out in the street, they found no carriage and began to look for one. उसके बाद वो लोग रात में एकदम माने सुबह एकदम 4 o'clock 4 बजे निकल आए पार्टी से, और वो लोग को कोई कैरेज इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्वेंस यूज्ड इन द मिडिवल एजेस. माने वो घोड़ा से खींचता हुआ एक गाड़ी, वो कोई मिला नहीं उन लोगों को. तो एंड बिगैन टू लुक फॉर वन, लेकिन वो लोग ढूंढने लगे. देयर वॉज वन इन द डिस्टेंस, और दूर में एक ठो दिखाई दिया. इट टूक देम एज फार एज देयर डोर इन मार्टर स्ट्रीट. दे वेंट अप टू देयर अपार्टमेंट, और उन लोगों को बहुत जल्दी से वो अपने घर में पहुंचा दिया, और वो लोग अपने अपार्टमेंट में चले आए. She stood in front of the glass for a final view of herself in her glory and suddenly uttered a cry. और जब वो आके ग्लास मिरर में जब अपना चेहरा देखने लगी, तब वो एकदम बहुत ज़ोर से डर गई. She was horrified to see that her necklace was gone. Her necklace was not around her neck. वो उनके गला में वो नेकलेस नहीं था. ये देख के एकदम बहुत ज़ोर से रोने लगी. She turned towards her husband. I have no longer have Madame Forester's necklace. और अपने हस्बैंड को देख के बोली कि अरे मेरे पास वो नेकलेस नहीं है, मैडम फॉरेस्टियर से जो नेकलेस मैं लाई थी वो नहीं है. And they looked in the folds of the dress, in the pockets, everywhere, but did not find it. और चारों तरफ वो लोग देखने लगे अपने कपड़े के अंदर, पॉकेट में, everywhere they searched for it, but they could not find the diamond necklace. So this is all for today, students, and I will take up another part in my next video. So till then, bye. Thank you.